Hello students, welcome back. Children, in the last lecture we have discussed the MCQs related to module number 1. In this lecture we'll focus on the MCQs for module number 2. Now children, module number 2 will actually consist of all the 5 chapters from chapter number 6 to 10. Okay, so here we go children, and while we discuss these MCQs we need to understand one thing, that these are some sample MCQs which I am explaining to you. You need to study more MCQ children. Okay, and as I explain to you certain questions, I will also clear up the concepts for you. Now those who have attended those online lectures and then you also have studied on your own, then you will find it a little easier. For the people who are just trying to study for the first time, it will be a bit difficult for you. Okay, so here is the module number 2 children, and in that chapter number 6 that we had studied was aggregate demand and aggregate supply. Now aggregate demand and aggregate supply के ऊपर कुछ questions हैं यहाँ पे. The question number 1 children, the point where aggregate demand and aggregate supply curves intersect each other is called dash. Now if you remember children, we have derived two different diagrams, right? In the first diagram we try to show what is called as the aggregate demand curve. Now the aggregate demand curve children, as we know, it keeps on sloping like this, and then we also derive the aggregate supply curve which was sloping upwards. अभी इन दोनों को जब हमने intersect कराया था, so we found a curve like this children, and this particular point that we have where aggregate demand curve and the aggregate supply curve, they intersect each other, so that is known children as the point of effective demand. क्या बोला था इसको? The point of effective demand. So our answer children is what? Option A में दिया हुआ total demand. No, it's got nothing to do with aggregate supply and aggregate demand. Point number B में दिया हुआ है चलो effective demand. I think that should be the correct answer that we have. Equilibrium demand, no. Non-equilibrium demand, no. So these options are incorrect. So अपना option रहेगा point B, effective demand. Children, second question. According to Keynes, in order to increase employment, we have to increase aggregate dash. Now Keynes children, we had studied one tree diagram. एक नोट दिया हुआ था बच्चों लोग, जहां पे we saw how इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है बच्चों लोग. सो इफ यू नीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, वी नीड टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड. And see children, in the short run, aggregate supply cannot be increased, and it is far easier to increase aggregate demand in the short run, because aggregate demand depends upon that formula, if you'll remember, that is aggregate demand is equal to C plus I plus G, जहाँ पे C stands for consumption, I का मतलब था investment, and G stood for government expenditure. Now we know children that all these things can be changed. जैसे consumption बच्चों लोगों के income को अगर आप थोड़ा सा भी change कराते हो तो consumption change होता है. Rate of interest के जरिए बच्चों investments बदलता है. Government expenditure generally is considered as autonomous, जो government खुद ही decide करती है. So we need to understand children that if we need to increase employment, we need to increase aggregate demand. So chalo, your answer is point C, right? Supply cannot be increased in the short run. Output and investment are irrelevant options children. Okay, now the third question that they have given there, which of the following curve is a schedule of minimum amount of proceeds required to provide various levels of employment? Children, who provides employment? It's the supplier, it's the producer. So I think this should be the answer for aggregate supply का definition आता है बच्चों लोग. Okay, aggregate demand, total spending and employment. If you just paid some attention to those two definitions that we have, the minimum amount of proceeds which one must achieve, right, and one should achieve,
अच्छा, they require to achieve and they must achieve. So that's what is actually called as the aggregate supply ka definition, children. Okay, so from that topic, children, we need to study that aggregate demand, then we study aggregate supply, और फिर दोनों को intersect कराते हैं हम लोग, we arrive at what's known as effective demand, right? Okay, going towards the next module that we had, children, that was investment multiplier. Acha, or investment function. Which of the following factors consist of those motives which induce individuals to refrain from spending out of their income? Acha, suppose, like, for example, children, we have got subjective factors, objective factors, and economic and social factors. Children, there are people who feel that I need to save money presently and we need to save some money for the future. Now those should be some subjective factors that we have, children, which actually affect the people's motive to spend their income either at the present or they want to spend that money in the future. Suppose, for example, children, if I feel that I want to start some business in the future, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना खर्चा कम करके अपना कुछ इनकम में बचा के रखता हूँ. अच्छा, मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके मुझे इंडिपेंडेंट होना है. Then, so what is the answer for this particular question, children? I'm repeating the question for you. Which of the following factors consist of those motives which induce individuals to refrain? Refrain is like to stop from spending out their income. तो अपना आंसर रहेगा बच्चों लोग subjective factors. Okay, not the objective factors. Economic, social, and objective are irrelevant options that we have. Question number 2. Keynes' consumption function helps to invalidate. क्या बोला देखो? Keynes' consumption function helps to invalidate what? Number 1, Keynes theory. No, that is liquidity preference theory. बच्चों लोग यहाँ पे consumption का उससे कुछ लेना देना नहीं है. Fisher's equation, children, it's related to supply of money. अच्छा, employment theory, this is something related to aggregate demand. तो बच्चों लोग we have got something what is called as the Say's law. Say's law क्या था? That supply can create its own demand. अभी Keynes क्या बोलता है बच्चों लोग कि like people spend money because they earn money, right? So your consumption depends upon your income. अच्छा, but Say's law says that supply can create its own demand. Supply अपना डिमांड खुद ही बना सकता है. जबकि Keynes क्या बोलता है बच्चों लोग कि like हम लोग डिमांड को इन्फ्लुएंस करा सकते हैं. No, supply can create its own demand. So I think answer has to be point C here, children. फिर MPS is the counterpart of dash. बच्चों लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे मैंने आपको. MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अच्छा, then children we also had what is called average propensity to consume and average propensity to save. So APS और MPS ये क्या है बच्चों लोग? सेविंग से रिलेट करते हैं. अच्छा, suppose like for example if you remember that formula that we have, children, marginal propensity to consume plus marginal propensity to save is always equal to 1. So question में क्या दिया है बच्चों लोग? MPS is the counterpart of dash. So answer क्या आएगा यहाँ पे? MPS is the counterpart of MPC. So our answer, children, is going to be point B, marginal propensity to consume or marginal propensity to save. Okay. अच्छा, question number 4. According to Keynes, as income increases, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, marginal propensity to consume and average propensity to consume, they are going to option number 1, children, rise. मतलब चलो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे आपका खर्चा करने का एवरेज बढ़ते जाता है, क्या कम होता है? बढ़ता नहीं है बच्चों लोगों को. तो टोटल इनकम में से जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा तो इनकम का वो हिस्सा बच्चों लोग हम लोग जो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा.
सो आंसर इज गोइंग टू फॉल चिल्ड्रन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चों लोग कि जब आपका इनकम इंक्रीज होता है तो आपका खर्चा करने का जो एवरेज रहता है वो धीरे धीरे कम होता है बच्चों। जैसे कि 10,000 कमा रहे थे तो आपने 8,000 रुपए खर्च कर दिए। अच्छा, जब 20,000 कमाते तो वहां पे जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज आए, वी डू नॉट स्पेंड दैट एंटायर इनकम। हो सकता है बच्चों लोग के लिए आपने 16-17 हजार रुपए उसमें से मतलब 14-15 हजार रुपए खर्च करते ज्यादा सेविंग, बिकॉज एज योर इनकम इंक्रीजेस वी टेंड टू सेव अ पार्ट ऑफ दैट इंक्रीज इनकम, और उसकी वजह से आपका खर्चा करने का टेंडेंसी बच्चों लोग धीरे धीरे कम होते रहेगा। सो राइज गलत है बच्चों लोग, रिमेन्स कांस्टेंट भी गलत है, 0 इज ऑल्सो रॉन्ग हियर। ओके, अच्छा, then going towards our next chapter children, that was related with some investment part. Investment will be in equilibrium when dash becomes equal to the given current rate of interest. तो बच्चों यहाँ पे एक फेवरेट वर्ड है जो ज्यादातर आंसर्स को फॉर्म करता है, एंड दैट इज समथिंग व्हाट इज टर्म्ड एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्या बुलाते हैं? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो बच्चों लोग इट्स द एक्चुअल प्रॉफिट रेट दैट वी हैव ना, कि लाइक तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट रेट क्या है और करंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों लोग। तो जब करंट मतलब आज में मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बच्चों लोग, व्हेन दे बोथ बिकम इक्वल देन वी से दैट इन्वेस्टमेंट इज इन इक्विलिब्रियम। सो हियर our answer children is marginal efficiency of capital. Okay, so savings is wrong, profit is also not related, if none of the above is also incorrect. फिर marginal efficiency curve क्या होगा बच्चों लोग? marginal efficiency curve it actually slopes downwards. marginal efficiency curve downward slope करता है बच्चों लोग। so ये उसका का स्लोप आपको पता होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट गलत है, अपवर्ड्स भी गलत है, डज नॉट चेंज इज आल्सो इररिलेवेंट, सो योर आंसर इज पॉइंट बी, स्लोप्स डाउनवर्ड्स, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रिफर्स टू व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब जब बच्चों हम लोग बिजनेस में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को पहले ही कैलकुलेट करना पड़ता है कि लाइक हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है बच्चों लोग ये। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, एंड नन ऑफ द अबव इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, अच्छा, एंड देन फाइनली चिल्ड्रन वी हैड द टॉपिक रिलेटेड टू मल्टीप्लायर। अभी जहां तक मल्टीप्लायर की बात है तो क्वेश्चन नंबर पहला जो यहाँ पे है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर दैट इज के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या सिखाया था मैंने आपको कि गवर्नमेंट अगर 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है और उसकी वजह से लोगों का इनकम बच्चों अगर 2 करोड़ से बढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि लाइक मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आता है? 2। इट मीन्स government का investment has multiplied twice and it has become how much? 2 crores. So question number 1, if a part of an increase in income is spent on imports, the value of multiplier will dash. आपको अगर याद आ रहा है तो मैंने आपको एक आंसर पढ़ाया था बच्चों लोग, that was called as leakages in the working of multiplier. क्या था क्वेश्चन? लीकेजेस इन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। लीकेज का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आपका इनकम बढ़ता है लेकिन फिर आप उसको खर्च नहीं करते हो, उसकी वजह से फिर वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। सो आपका इनकम बढ़ गया लेकिन फिर आपने क्या किया? आपने फॉरेन से कुछ गुड्स को इंपोर्ट करा दिया बच्चों। अभी इंपोर्ट कराने से फिर पैसा फॉरेन कंट्री में चला जाएगा। इज इट गोइंग टू इंक्रीज आवर कंट्रीज मल्टीप्लायर? नो। सो दैट इज व्हाई चिल्ड्रन हियर वी से दैट मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी लो। वापिस से रिपीट कर रहा हूं मैं बच्चों, आपके पास आया हुआ पैसा अगर आप बाय चांस फॉरेन से कुछ गुड्स इंपोर्ट करने के लिए यूज करोगे तो मल्टीप्लायर हाई नहीं होगा, नॉट चेंज भी नहीं है बच्चों लोग, इंक्रीज नहीं होगा, मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी लो। क्यों? क्योंकि बच्चों लोग अपने देश का पैसा बाहर जा रहा है तो बाहर के देश में वो मल्टीप्लाई होता है, नॉट इन आवर कंट्री। Second question children, the value of multiplier is inversely related to dash.
वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू डैश। अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या होता है? चलो, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स है, एक एमपीसी और एक होता है चलो एमपीएस। एमपीसी मतलब चलो क्या होता है? इट्स नथिंग बट चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। और एमपीएस क्या होता है? इट्स चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, राइट? अच्छा, अभी ये खर्चा है आपका। एमपीसी मतलब क्या होता है? खर्चा। और एमपीएस का मतलब क्या होता है? चलो सेविंग्स। तो आप सबको पता है कि आप जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ज्यादा मल्टीप्लायर ऑपरेट करेगा, राइट? लेकिन वहीं पे अगर आप पैसा बचा के रखोगे, अगर आप पैसा बचा के रखते हो तो फिर आपका मल्टीप्लायर काम करना बंद कर देगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया बच्चों लोग, हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर, मतलब जितना ज्यादा खर्च उतना ज्यादा मल्टीप्लायर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अबाउट कोई भी एक गार्डनर है, किसी स्कूल में काम के लिए जाता है बच्चों लोग, वहां पे अभी देखो कैसे कि अगर मैंने अपने बच्चे का स्कूल का फीस पे किया बच्चों लोग 10,000 रुपीज, अच्छा, तो स्कूल ने क्या किया चलो वही 10,000 रुपए उठा के उनके वहां पे कोई प्यून काम करने के लिए था, उसको पे कर दिया। दूसरी बार खर्च हो गया, वो प्यून घर पे जा रहा था, उसका कुछ ग्रोसरी परचेस करना था, उसने वो पैसा खर्च करके फिर वो घर पे चला गया चलो, तो 3 बार पैसा खर्च हो गया। तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना आता है? 3 है 10,000 रुपए। काम कितने का करते हैं बच्चों लोग? 30,000 रुपीज का काम कर रहा है। अच्छा, वहीं पे बच्चों लोग जो ग्रोसरी वाला है उसने अपने सप्लायर को वही 10,000 रुपए पे कर दिया, तो फिर आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लायर 4 हो जाता है। लेकिन वहीं पे वो जो 10,000 रुपए मैंने दिए स्कूल में और वो प्रिंसिपल ने अपने ड्रॉवर में रख दिए सपोज एग्जांपल के लिए, और उसको बाहर ही निकाला, उसको खर्च नहीं किया बच्चों लोग, उसको वैसे ही रख दिया है, तो फिर मतलब क्या? पैसा सेव हो गया। फिर वो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या आता है? कम। सो हायर एमपीसी मींस हायर मल्टीप्लायर, लोअर एमपीसी इज लोअर मल्टीप्लायर। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है बच्चों बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। लेकिन अगर एमपीएस की बात करते हो तो इट्स टॉकिंग अबाउट सेविंग्स ना, सो इट विल बी इनवर्सली रिलेटेड। And I already explained to you children, we had a formula if you remember, K is equal to 1 upon 1 minus MPC. This was the formula that I taught you. Okay? Or MPS, K is equal to 1 upon MPS. Okay? अभी फॉर्मूलाज बता रहा हूं, जिन्होंने कोई भी लेक्चर सुना हुआ नहीं है, आप लोगों को ये सब जादू दिखेगा, ये कैसे आया, वो कैसे आया, वो आपका जिम्मेदारी है। अगर अपने लेक्चर्स अटेंड किए रहेंगे फिर सुने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मल्टीप्लायर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर चिल्ड्रन? कि इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस। सो ऑप्शन इज पॉइंट बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट वे द मल्टीप्लायर इज रिलेटेड टू एमपीएस? तो अभी हमने देखा यहाँ पे चलो एमपीएस से कैसे रिलेटेड होता है। डायरेक्टली रिलेटेड, गलत जवाब। ओके, नॉट रिलेटेड, गलत जवाब। तो इट्स द रेसिप्रोकल। ये जो हम लोग लिखते हैं ना, K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मल्टीप्लायर। सो आंसर चिल्ड्रन इज पॉइंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ in the fourth question children, the theory of employment multiplier was developed by, and I told you, see children, generally we relate the name of J.M. Keynes, लेकिन ये theory develop किसने किया था? R.F. खान, और आगे जाके उसको popularize कराया था जॉन माइनर केन्स ने, but it was originally developed by R.F. खान. So these were the objectives related to chapter number 9, that is the theory of इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ओके, फिर था चलो अपना चैप्टर नंबर 10, दैट वाज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. ओके, और वहां पे मैंने आपको कुछ 3 अलग अलग मोटिव्स पढ़ाए थे. इफ यू रिमेंबर, ट्रांजैक्शन मोटिव था एक, दूसरा क्या था? प्रिकॉशन मोटिव, और तीसरा क्या होता है? स्पेक्युलेटिव मोटिव. सो व्हाई डू पीपल डिमांड मनी? ईदर टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन, or they want to save it so that they can spend it in the future, or they want to make profit out of money. So people demand money for these 3 different motives. So question number 1 children, according to Keynes, interest is dash. बच्चों, जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिमांड और सप्लाई मिलके तय करते हैं, in a similar way, if you remember, we have the supply of money curve, which is actually a straight line because it is determined by Reserve Bank of India and it's perfectly inelastic.
अच्छा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व चिल्ड्रन इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये दो कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कराते हैं उसको हम लोग क्या बुलाते हैं यहाँ पे, वी कॉल इट एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. सो आंसर इज रेडी हियर चिल्ड्रन ऑलरेडी. अच्छा, डिटरमाइंड बाय रियल फैक्टर, गलत जवाब. डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट रिलेटेड. एंड डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी. चलो, पहले जमाने में मतलब 1991 से पहले RBI used to determine the rate of interest, but presently rates of interest have been deregulated. That means RBI doesn't fix the rates of interest, they are left to the market. Market determine करता है, और market का मतलब होता है चलो डिमांड एंड सप्लाई. क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांजैक्शन मोटिव ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज डैश. क्या बोला है? ट्रांजैक्शन मोटिव फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज डैश. मतलब आप ट्रांजैक्शन करने के लिए कितना पैसा डिमांड करते हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है. यहां पे दिया बच्चों इंटरेस्ट इलास्टिक, गलत. बच्चों मैं कितना पैसा खर्च करता हूं, ये बैंक मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना. अगर बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी तो फिर मैं अपना खर्चे के लिए जो पैसा रखा उठा के बैंक में थोड़े ना रखूंगा, नहीं. बी में क्या दिया, इनकम इन इलास्टिक, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनकम. ये भी गलत ऑप्शन है बच्चों लोग, इट डिपेंड्स अपॉन इनकम. अच्छा, इधर जो दिया ना, इट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ये सही जवाब है. बिकॉज द डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव चिल्ड्रन इज नॉट डिपेंडेड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. अच्छा, none of the above would actually be the wrong option that we have. The third question, precautionary demand for liquidity is determined by dash. आप प्रिकॉशन के लिए कितना पैसा रखते हो, किसके ऊपर डिपेंड करेगा चलो. प्रिकॉशन के लिए कितना पैसा रखते हैं, ये ऑब्वियसली चिल्ड्रन इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन योर इनकम. मतलब people generally have a tendency to keep aside a part of their income so that they can use it for some unforeseen contingencies. चलो, लाइफ फ्यूचर सर्टन होता है क्या, अनसर्टन. अनसर्टन. अभी हम लोग कितना पैसा ऐसा बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनकम के ऊपर. कि जिनका इनकम कम होता है वो लोग प्रिकॉशन के लिए कम पैसा रखते हैं, जिनका इनकम ज्यादा है उन्होंने प्रिकॉशन के लिए ज्यादा पैसा रख दिया. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट. बॉन्ड के प्राइसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी नहीं. सो आंसर इज पॉइंट डी. क्वेश्चन नंबर 4, at a very low rate of interest the liquidity preference curve becomes dash. At a very low rate of interest the liquidity preference curve becomes dash. If you remember, I have taught you one concept children that is called as liquidity trap. Acha, demand for curve money children slopes downwards, right? But I told you that at a very low rate of interest, and what was that rate of interest children? Around 2%. केन्स के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट नेवर फॉल्स बिलो 2%. तो यहाँ पे बच्चों आपका जो डिमांड फॉर कर्व है ना, मनी, डिमांड फॉर मनी का कर्व, दैट बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक. सो आंसर यहाँ पे आएगा बच्चों लोग, द डिमांड कर्व फॉर मनी बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक. ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, जिसको मैंने लिक्विडिटी ट्रैप करके बोला था. बच्चों अगर बैंक आपको सिर्फ 1 या फिर 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी, विल यू कीप मनी इन द बैंक? नो. इट इज बेटर दैट इफ यू यूज इट, या फिर आप उसको बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको. क्वेश्चन नंबर 5, द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय डैश. मार्केट में कितना पैसा सप्लाई होता है, ये कौन डिसाइड करता है बच्चों लोग? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, गलत जवाब. कैपिटल मार्केट्स, नो. मनी मार्केट, नो. तो बचता क्या बच्चों लोग? मॉनेटरी अथॉरिटीज. और मॉनेटरी अथॉरिटीज में जनरली वी आर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्मॉलर करेंसीज आर आल्सो इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बच्चों गवर्नमेंट, मॉनेटरी अथॉरिटीज, दैट इज RBI और फिर कमर्शियल बैंक्स, ऑल दे डिसाइड द मनी सप्लाइड इन द मार्केट. क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन LP कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड. ध्यान से देखना है यहाँ पे बच्चों लोग कि लाइक दिस इज Y एक्सिस, दिस इज X एक्सिस. अच्छा, तो बच्चों लोग अपना LP कर्व होता है, राइट, और दिस इज द
सप्लाई ऑफ मनी, दिस इज डिमांड फॉर मनी, तो इसको हम लोग एलपी कर्व करके बोलते हैं, दिस इज द मनी सप्लाई। तो क्या बोला, एलपी कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड, मतलब आपका एलपी कर्व चलो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो इनिशियली वो चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, अभी नया वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर आता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले आर था, नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा R1, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू फॉल, मतलब रेट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है चलो, इट्स द डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी कम होने से मार्केट में रेट ऑफ, लोग पैसा डिमांड ही नहीं करे तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। राइज होने का सवाल नहीं है चलो यहाँ पे, इट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट एंड इट कैन नेवर बिकम जीरो। सेवेंथ वाला क्वेश्चन, अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट कैन टेक प्लेस ड्यू टू डैश। इंटरेस्ट रेट राइज होने के पीछे बच्चों लोग दो रीजंस होते हैं, एक ये आपका एलपी कर्व, ये आपका मनी सप्लाई कर्व। अच्छा, तो एलपी कर्व अगर अपवर्ड शिफ्ट हो गया है, मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ गया, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। या फिर देयर कुड बी वन मोर रीजन ना, दिस वाज द डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी। अगर सप्लाई ऑफ मनी कर्व कम हो गया बच्चों लोग, तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब या तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ना या फिर मनी सप्लाई कम होना। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शन। अच्छा, अ डाउनवर्ड शिफ्ट इन द एलपी को, एलपी को डाउनवर्ड शिफ्ट होने से बच्चों लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। दूसरा, एन अपवर्ड शिफ्ट इन एलपी को विथ नो चेंज इन एमएस को। ये देखो बच्चों लोग, आपका एलपी कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया ना इधर यहाँ पे, और एमएस कर्व शिफ्ट नहीं हुआ है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब पैसे का डिमांड बढ़ गया है, सप्लाई नहीं बढ़ा, तो बच्चों लोग ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, एन इंक्रीज इन एमएस विथ नो चेंज इन एलपी, मतलब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से, गलत जवाब है बच्चों लगे, और नन ऑफ द अबव, तो मुझे लगता है अपवर्ड राइज इन द एलपी कर्व, राइट। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट टू मॉड्यूल्स वी हैव डिस्कस्ड, राइट। अच्छा, तो आज के ये जो 5 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, द फर्स्ट वन चैप्टर नंबर 6 चिल्ड्रन, दैट इज द थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद में चिल्ड्रन वी हैड द कंजम्पशन फंक्शन, क्या था, कंजम्पशन फंक्शन। उसके बाद में आता है फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन, देन वी हैव द मल्टीप्लायर, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, और फिर एक लास्ट में चैप्टर नंबर 9 चिल्ड्रन विच इज रिलेटेड टू द थियोरी ऑफ मल्टीप्लायर, और फिर 10th वाला लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आने वाले लेक्चर में चिल्ड्रन वी विल बी कवरिंग चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 15, जो रहेगा अपना मॉड्यूल नंबर 3 से रिलेटेड एमसीक्यूज। फिर लास्ट लेक्चर में चलो मैं आपको बताऊंगा अबाउट द एमसीक्यूज फॉर चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17 विच आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, take care, keep studying if you really want to go to your TY without carrying any burden like KTs and all those things. Bye everyone, take care, see you in the next lecture.